عیدگاہوں میں نماز کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد کے پولو گراؤنڈ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع کیا گیا، جس میں اہم حکومتی اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ آئی جی اسلام آباد سیکیورٹی کا جائزہ لینے فیصل مسجد پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے شہر بھر میں 2000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی کو رواں رکھنے کے لیے 500 اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد، سکھر، مردان، سبی، مری، گلیات، گردنواہ، بھاولپور اور جھنگ سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی عید الفطر کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ یہاں آپ کو بتایا کہ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بس سے ملک بھر کے مساجد، عیدگاہوں میں نماز کے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں بڑے نے شرکت کی۔ روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ اور ملک کی قوم و سلامتی اور ترقی کی خواہشیں بھی کی گئیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد، کراچی کے پولو گراؤنڈ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع ہوا، جس میں اہم حکومتی اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد، سکھر، مردان، سبی، مری، گلگت، سرگودا، بہاولپور، جھنگ سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مفتی منیب الرحمان کی امامت میں فیڈرل ایریا عیدگاہ میں نماز عید ادا کی گئی۔ کراچی کی گورنر ہاؤس میں عید کی نماز صبح 7 بجے ادا کی گئی، جس میں جہاں گورنر سندھ سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئی۔ پولو گراؤنڈ میں بھی نماز عید ادا کی گئی، جس میں میئر کراچی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ناظم آباد کے عیدگاہ گراؤنڈ میں مفتی تقی عثمانی نے عید کی نماز پڑھائی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی اسی مقام پر نماز عید ادا کی۔ کراچی شہر میں مجموعی طور پر 4000 سے زائد چھوٹے اور بڑے نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جہاں لاکھوں مسلمانوں نے یکجا ہو کر عید کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر مبارکباد دی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد بیشتر شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا اور اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ حمزہ شہباز دیگر بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ نماز کے بعد گھل مل گئے، عید کی مبارکباد دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، عید کے پرمسرت موقع پر ہمیں فلسطین کشمیر کے مظلوم عوام کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی مدد کے لیے مخیر حضرات کو آگے آنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی مضبوطی استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ قومی یکجہتی ہی ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کا واحد حل ہے۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا، ہماری افواج نے بے شمار قربانیاں دے کر ملک کو محفوظ بنایا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی قیادت کی پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ عید کے موقع پر ہمیں اپنے بہن بھائی چاہیے، اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خوشیوں بھرے لمحات میں مستحق افراد کو نہیں بھولیں گے۔ دعا ہے کہ عید الفطر کا چاند ہر گھر میں امن، سکون اور خوشیاں لے کر آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں، ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ملک کی صالحیت اور استحکام کے لیے ہمیشہ متحد ہونا ہوگا۔ متحد ہو کر وطن عزیز کے خلاف سازشوں کو بھی ناکام بنانا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد دی اور کہا کہ عید خوشی، شکر گزاری اور مسرت کا تہوار ہے۔ وہ خاندان جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ خطرات ہمارے ملک کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان آذربائیجان کے صدور سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، تعلقات کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ازبکستان آذربائیجان کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ کہا، پاکستان ازبکستان آذربائیجان کے درمیان اقتصادی، تجارتی، ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ آذربائیجان کے صدر کے اپریل میں پاکستان کے متوقع دورے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اس دوران $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے، جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ईद की नमाज घड़ी खुदा बख्श में शौदा जमहूरियत के बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम मकान निसार खोड़ो, आगा सिराज दुरानी, सुहेल अनवर सैयार, जमील सोमरो, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी समेत दीगर भी मौजूद थे। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। बिलावल भुट्टो ने नमाज के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद पेश की, मुसाफा किया और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शौदा जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी भी दी। अपने नादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी थी। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा ख्वानी की गई। मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो के मज़ार पर फूल भी चढ़ाए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के लॉन में ईद की नमाज अदा की। इनके हमरा मुस्लिम जर्नल समेत MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फासिल सत्तार भी थे। नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डंपर हादसात पर कराची के अवाम से माजरत करता हूँ, ईद सादगी से मना रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर ईद के बाद लाहेमल का ऐलान करेंगे। MQM दुखी दिल के साथ सादगी से ईद मना रही है। 100 के करीब अफराद डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए। अभी तक ये नहीं बताया कितने डंपर्स ड्राइवर पकड़े गए। एक डंपर ने मां के साथ नौमौलूद बच्चे को भी कुचल दिया। ट्रैफिक हादसात के बारे में सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस सिंध, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखे कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। उन्होंने अहले वतन और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, रमजानुल मुबारक के दौरान लोगों में इमदाद तकसीम की गई। मजीद बोले, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पर अमल नहीं करवा पा रही। ईद के मौके पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती का इजहार किया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि कराची को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता, हमारे लोग जुल्म और जबर कश हैं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस सिंध में ईद की नमाज से गुफ्तगू। कहते हैं कि दावे से डंपर माफिया और कहता हूँ कि डाकू गैर मकामी है। कराची को जिस अंदाज में चलाया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। MQM ने जमहूरियत की खातिर वफाक का साथ दिया था और अब वफाक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के मसाइल को हल करे। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि कातलों की गिरफ्तारी तक सुकून से नहीं बैठा जाएगा। दिल भारी के साथ कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सादगी से ईद मना रहे हैं। इस वक्त सिंध के शहरियों में बेचैनी पाई जाती है और दहशतगर्दी के मसले पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। आइंदा बजट से कबल आवाम को कुछ उम्मीद दिलाई जानी चाहिए और बिजली की कीमतों में कम अज कम 10 रुपए फी यूनिट तक कमी की जानी चाहिए। मजलूम फलस्तीनियों को हमारी मदद की जरूरत है। ईदगाह की उस्मानी की इमामत में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमा ने नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हाफिज नईम ने, इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है। मुल्क में सियासी बहरान है। पाकिस्तान के 2 सूबों बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हैं। हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे यकजाई पैदा हुई। जब अपने ही लोगों को महरूम करेंगे तो लोगों में गम और गुस्सा पैदा होता है। लोगों को लापता किया जाता है, उन पर बमबारी की जाती है, जो दुरुस्त नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। ईद के बाद अमन व अमान, बिजली बिलों, चीनी आटा माफिया के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। यहाँ आपको बताया कि शवाल का चांद नजर आने के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की वाक़या, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। कस्बा कॉलोनी हैदरी में नामालूम सिमटी लगने से एक बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। लियारी, बल्दिया टाउन, लांडी और दीगर इलाकों में भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 शहरियों को जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और 6 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार अफराद से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में आई है। सऊदी अरब समेत कई खलीजी रियासतों में गुज़िश्ता रोज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे। सऊदी अरब में ईद उल फितर की नमाज के बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी में मुनक़िद हुए, जहां लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर के खुतबे के बाद आलम इस्लाम की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसके अलावा अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्किया में भी कल ईद मनाई गई। दहशतगर्दों के
के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूस राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्दों के कोई मुतालबात नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मुकम्मल खात्मे तक जारी रखी जाएगी। ताहम आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्वास्त है कि ऐसा मुतालबा ना किया जाए जिससे दहशतगर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते, उन्हें चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। दुश्मन ममालिक चाहते हैं या नफरतों की आग भड़काई जाए, तमाम पाकिस्तानी को इख्तिलाफात भुलाकर की कोशिश करनी है। अफवाज सिक्योरिटी इदारों के जवान वतन के लिए कुर्बानी दे रहे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के हैदराबाद से ईद नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाकयात पेश आए, बेगुनाह लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। उन्होंने कहा, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इत्तेहाद का पैगाम दिया। माजी की तलखीन को ख़त्म करते हुए कौम को एक होना पड़ेगा। दरियाए सिंध से नई कैनाल्स निकालने पर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा, पीपल्स पार्टी नहरें निकालने के खिलाफ थी, है और रहेगी। IG की ज़ेर सदारत इजलास में कराची में नए ट्रैफिक और रोड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और महफूज सड़कों के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला भी कर लिया गया। इजलास में एडिशनल IG और कमिश्नर समेत पुलिस हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया गया है। नए कवानीन ट्रांसपोर्टर्स, मोटरसाइकिल सवारों और चिंगची रक्षों पर लागू किए जाएंगे। इजलास में सड़कों पर पानी गिराने वाले टैंकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी और चेन पॉकेट भी चेन को कवर नस्ब करना लाजमी करार दे दिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। मुआहदा न किया तो बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, अगर ये बनाने का सिलसिला जारी रखा तो इस पर बमबारी की जाएगी। ईरान पर मज़ीद दबाव डालने के लिए लगाने की भी धमकी। ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, ईरान को एक खत भेजा जिसमें कहा, आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। ईरान ने मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी सदर के खुतूत का जवाब देते हुए अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अरब मीडिया से मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा से खुला है। यहाँ आपको बताएं कि गजा में ईद की खुशियां मातम में तब्दील कर दी गई। इसराइली हमले जारी, फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा के बाशिंदे ईद की खुशियों के बजाय फिजाई हमलों का सामना कर रहे हैं। खान यूनिस में अलसुब होने वाले फिजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। मवासी पर हमले में 3 लड़कियां शहीद, जो कि ईद के कपड़ों में मलबूस थीं। रफा में मजीद 11 लाशें बरामद कर ली गईं, जिनमें 6 फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के अरकान शामिल हैं। मसाजिद, बाजार और गलियां वीरान हो चुकी हैं। लोग मलबे पर नमाज ईद अदा करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि हजारों बेघर अफराद आरजी खैमों में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश, साथ शर्त रख दी। नेतन्याहू ने इतवार को हमास के रहनुमाओं को गजा छोड़ने की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी, मुसल्लह गुट हथियार डाल दे। इसराइली वजीर आजम ने काबीना इजलास में कहा, हम जंग के दौरान मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमास के मौक़िफ़ में दरारें पड़ रही हैं। हमास अपने हथियार डाल दे तो इसके रहनुमाओं को गजा छोड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसराइली वजीर आजम के फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के ट्रंप मंसूबे पर अमल करने की हर धर्मी बरकरार। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि दूसरे वनडे से कबल पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस्मान खान को पहले वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कौमी क्रिकेटर के MRI स्कैन में तस्दीक कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक उस्मान खान 2 अप्रैल को हेमिल्टन में होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए दस्तयाब न हो सकेंगे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन